अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ना घबराएं, वैक्सीन की 2 खुराकों को यकीनी बनाएं। तेलंगाना हुकूमत रियासत की आवाम से की अपील। 9 ता 13 दिसंबर जंतर मंतर दिल्ली पर मुनज़्ज़म किया जाएगा धरना। कांग्रेस कायदीन का इंदिरा पार्क पर धरने का अख्तिताम, गवर्नर से नुमाइंदगी करने का किया गया फैसला। टीआरएस अरकान पार्लिमान का प्रगति भवन में इजलास, रियासत के किसानों से धान खरीदी के मसले को पेश करने केसीआर ने दी हिदायत। एक्सीडेंट केस में मुलजिम की फरारी में मदद करते हुए रिश्वत हासिल करने वाला होमगार्ड और दीगर 2 अफराद गिरफ्तार। एसओटी पुलिस ने कोकटपल्ली में रिव्यू पार्टी का पर्दा किया फाश, 2 ज़नखे और 44 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ारत सेहत महकमे तेलंगाना ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड इन्फेक्शन से ना घबराएं बल्कि वैक्सीन को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में तिबी मिशनरी मुतहरिक है और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि नए वेरिएंट से घबराने की बजाय कोविड टीके की 2 खुराकों को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद बताया कि शमशाबाद में वाक़ एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताहाल मुल्क भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। కానీ ఈ కేసులు ఏదైతే ఉందో ఈ తగ్గుదల మనకి పూర్తిగా గత 5 నెలల నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ మన కేసులు 100 150 స్థాయికి చేరుకున్నాం కాబట్టి ప్రజల్లో ఒక అలసత్వం రావటం, తద్వారా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏదైతే తీసుకోవాలో ముఖ్యంగా మనం అదే ఏ వేరియంటే కానివ్వండి, ఈరోజు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కానివ్వండి, ఇంతకుముందు డెల్టా వేరియంట్ కానివ్వండి, ఏ వేరియంట్నే మనం ఎదుర్కోవాలి, ఈ కోవిడ్ మనకి రాకుండా ఉండాలంటే మనం 2 రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకటి ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో ఉన్నవి 2 టూల్స్. ఒకటి వ్యాక్సినేషన్. ఆ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విస్తృతంగా జరుగుతున్నది. అండ్ ఫస్ట్ డోస్ మనం ఆల్మోస్ట్ 90% ఈరోజు వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మనకి మొత్తం టార్గెటెడ్ పాపులేషన్ వచ్చేసి 2,77,67,60,000 మంది ఉంటే దాంట్లో 90% పాపులేషన్కి 1 డోసుని ఇచ్చుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ. అలాగనే 2 డోసుల రక్షణ ద్వారా మనం సుమారు 45% మందికి పాపులేషన్కి మనం ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చుకున్నాం. ఈ వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి కూడా ప్రజల్లో కేసులు లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు ముందుకు రావట్లేదు. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోకండి. మళ్ళీ రేపొద్దున ఒక కొత్త వేరియంట్ కానివ్వండి, ఇంకో రూపంలో కానివ్వండి వచ్చి మళ్ళీ మన జీవితాలని ఈ కోవిడ్ అతలాకుతలం చేసి ఇబ్బందులు పెట్టే కంటే ముందు మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం వల్ల, అది కూడా 2 డోసులు తీసుకోవటం వల్ల మీకు పూర్తి రక్షణ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 45% మాత్రమే మనం 2 డోసులు ఇచ్చుకున్నాం. అండ్ సుమారు ఒక 25 లక్షల మందికి పైగా ఇంకా డ్యూ డేట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా 2వ డోసు తీసుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదు. అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మేము వ్యాక్సిన్ని ప్రజల దగ్గరకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది, ప్రజల డోర్ స్టెప్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మొబైల్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాన్స్ ద్వారా అనుకోండి, లేకపోతే మా మొబైల్ టీమ్స్ ద్వారా కానివ్వండి మేము వ్యాక్సిన్ తీసుకెళ్తున్నాం. దయచేసి ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ డోస్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది ఫస్ట్ డోస్ తీసుకోండి. ఇంకా సెకండ్ డోస్ డ్యూ డేట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి 2వ డోస్ కూడా తీసుకోవడం ద్వారా మీకు పూర్తి రక్షణ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే. ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు మీరు వైరస్కి గురి అయినా కానీ మీరు హాస్పిటలైజ్ కాకుండా మీ శరీరంలో ఈ వ్యాధి తీవ్రం కాకుండా తద్వారా ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడున్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఏదైతే దాని నుంచి కూడా పూర్తి రక్షణ దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ సైంటిస్టులు కానివ్వండి, ఈ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కూడా ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ద్వారా మీకు కోవిడ్ నుంచి రక్షణ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. ఇకపోతే ఈ నాన్ ఫార్మకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏవైతున్నాయో, అంటే ఈ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏవైతున్నాయో, ముఖ్యంగా మాస్క్ ధరించడం కానివ్వండి, భౌతిక దూరం పాటించడం కానివ్వండి,
లేకపోతే చేతుల్ని తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం కానివ్వండి, ఈ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత కానివ్వండి, అలాగనే ముఖ్యంగా ఈ పెద్ద పెద్ద సమూహాలు గుంపులకి వీటి దూరంగా ఉండటం కానివ్వండి, మళ్ళీ ఇవంతా కూడా ఎంతో కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దాని మొత్తం మనకి పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే ఇంకా 2 వారాలు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు మనకి జాగ్రత్తగా ఉండటం ద్వారా, ఎందుకంటే ఇది మనకి కళ్ళకు కనిపించే వైరస్ కాదు, మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఏ రూపంలో వస్తుందో తెలియదు, ఎవరిని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుందో తెలియదు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की क़यादत में धरना चौक इंदिरा पार्क पर कांग्रेस कायदीन ने रियासत के किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए मुसलसल धरना मुनज़्ज़म किया है। शर्म तुमको नहीं आती केसीआर उन्वान से ये धरना जारी है। कांग्रेस कायदीन ने केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है और दिल्ली को ऐसे वफद को भेजा जा रहा है जो किसानों के मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं है। कांग्रेस कायदीन ने ऐलान किया कि वो अपने मुतालबे के साथ गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुलाकात करेंगे। अलावाजी दिसंबर 9 ta 13 इस सिलसिले में जंतर मंतर दिल्ली पर धरना भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन पर टीआरएस अरकान पार्लिमान का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला ने अरकान पार्लिमान को मुख्तलिफ़ हिदायतें जारी की। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव की क़यादत में महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ज़राए के मुताबिक कोरोना की नई शक्ल के इम्कानी फैलाव को रोकने के इक़दाम पर गौर व ख़ौज़ किया गया और इस बात का जायज़ा लिया गया कि साउथ अफ्रीका से रियासत के मुसाफिर जो मुंबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर स्क्रीन टेस्ट करने के बाद उन्हें 14 रोज़ होम क्वारंटाइन होने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा इस इजलास में इस बात का भी फ़ैसला लिया गया कि मरकज़ी हुकूमत के कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए और कोरोना वायरस की नई शक्ल और कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से रियासत के अवाम को महफूज रखने के लिए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। इस इजलास में सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी, डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र इतवार के रोज़ खम्मम के दौरे पर हैं। उनका नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में वालेहाना खैर मकदम किया गया। ई राजेंद्र ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि वो रियासत के किसानों से धान की खरीदी को लेकर मरकज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि मरकज़ रियासत से धान की खरीदी करने के इक़दाम कर रही है और रियासत को चावल की फराहमी के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी खामियों को छुपाने की खातिर मरकज़ पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। రెండవది, రాష్ట్రం చాలా రిచెస్ట్ స్టేట్, చాలా ఆర్థికంగా పరిపుష్టి కలిగిన రాష్ట్రం అని చెప్తున్నావు, అదంతా కూడా బక్వాస్ అని తెలిసిపోయింది. 65,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు వారసత్వంగా మనకు అప్పొచ్చింది. కానీ ఇవాళ 4 లక్షల కోట్ల పైచిలకు ఇవాళ డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అప్పులు తీసుకున్నాం. నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौजवानों को चाहिए कि वो ज्योतिराव फूले के उसूलों पर कारबंद रहे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल से बेहतर अंदाज में निमट रही है। तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में वो वाहिद रियासत है जहाँ किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कोरोना वबा के दौरान भी किसानों से अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाया गया।
انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست کے کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں کل دوپہر 2 بجے پرگتی بھون پر کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام وزراء کو کل منعقد ہونے والی کابینی میٹنگ کی اطلاع دیں۔ ذرائع کے مطابق کل منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ دھان کی خریدی کو لے کر مرکز کے سخت موقف کے خلاف احتجاج منظم کرنے پر بھی غور کرنے کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اجلاس میں کورونا کی نئی شکل اور امکانی تیسری لہر سے ریاست کے عوام کو محفوظ رکھنے کے احتیاطی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر TRS اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پرگتی بھون پر TRS پارٹی کے اراکین لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ذرائع کے مطابق کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں TRS اراکین لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کی حکمت عملی سے واقف کرواتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ریاست کے کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے کو پیش کرتے ہوئے مرکز پر دباؤ ڈالے کہ وہ فوری طور پر ریاست کے کسانوں سے دھان کی خریدی کو ممکن بنائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے اراکین پارلیمنٹ کو اس بات کی بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مرکز سے ریاست کو فنڈ جاری کرنے سے متعلق ایوان میں آواز اٹھائے۔ گورنمنٹ ٹیچرز کو تیلگو زبان سکھانے اور محکمہ جاتی ٹیسٹ کی تیاری کی غرض سے تیلگو اورینٹیشن پروگرام کا اہتمام جنگمبیڈ گورنمنٹ ہائی اسکول میں کیا گیا۔ تیلگو پنڈت اور ماہر تیلگو زبان عبدالصمد نے مذکورہ اورینٹیشن پروگرام میں کلاس لی۔ اس موقع پر خواجہ معراج الدین جنرل سیکرٹری STU بلہ گڑھا، سید ندیم اختر پریزیڈنٹ STU بلہ گڑھا اور دیگر نے مہمانان کے طور پر شرکت کی۔ مذکورہ پروگرام کے بارے میں عبدالصمد سر نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ السلام علیکم، میں محمد عبدالصمد، آپ لوگوں کا تیلگو سر۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اب تک میں صرف اور صرف 10th کلاس کے بچوں کو اور جو تیلگو سیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کو تیلگو سکھاتا رہا، لیکن آج کا موقع ایسا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کو بھی تیلگو یعنی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ایک تیلگو کا ایک ایگزام رہتا وہ یعنی ڈپارٹمنٹل میں، جبکہ ان کو پروموشنز کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایگزام تقریباً لوگ ہر 6 مہینے میں ایک بار ایگزام رہتا، تو یہ ایگزام کی تیاری کے لیے مجھے دعوت دیا گیا۔ تو یہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول جنگمبیڈ میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور یہ پروگرام میں بہت سارے ٹیچرز اور دیگر ڈپارٹمنٹل کے لوگوں بھی یہ ایگزام کی تیاری کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ ہمارا یہ سیشن تھا، الحمدللہ یہ بہت کامیاب رہا، بہت لوگ فائدہ حاصل کرے، اور جو سو وہ اپنا خوشی کا بھی اظہار کرے۔ ایسے پروگرامز اور کرے تو اور ہمارے ٹیچرز کے لیے بہت فائدہ مند رہتا بول کے بھی بتائے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے یہ جو گورنمنٹ ٹیچرز کو اورینٹیشن پروگرام، یعنی تیلگو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کس طریقے سے لکھنا، کیسے مارکس حاصل کرنا کا یہ پروگرام کا تھا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اب یہ ایسے پروگرامز بھی اور دوسرے یعنی ایسوسیشن والے یا کچھ بھی اور کوئی بھی دوسرے کوئی سے بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر ہمارے مائنارٹی کے ٹیچرس ہو یا امپلائیز ہو، جس کو بھی اگر یہ تکلیف اگر ہے تو وہ دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे तर्जुमा में PhD रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद आसिफ अली का वाया इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी सदर शोबे तर्जुमा प्रोफेसर खालिद मुबशर अल ज़फ़र ने की। रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद आसिफ अली ने अपने मक़ाले बउन्वान उर्दू पर यूरोपी ज़बानों के असरात का मजमूई तौर पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए जायज़ा पेश किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शोबे लिसानियात से वाबस्ता प्रोफेसर AR फ़तीही ने मुम्तहिन की हैसियत से इस वायुवा में शिरकत की और मक़ाले से मुताल्लिक़ कई सवालात भी किए। मज़कूरा मक़ाला डॉक्टर जुनैद ज़ाकिर की निगरानी में मुकम्मल किया गया है। इब्तिदा में डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ज़ाकिर असिस्टेंट प्रोफेसर ने मुम्तहिन और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि सदर शोबे प्रोफेसर खालिद मुबशर अल ज़फ़र ने शोबे तर्जुमे की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी भी डाली। इस मौके पर डीन प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, शोबे तर्जुमे से वाबस्ता स्टाफ अराकीन डॉक्टर महमूद काज़मी, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर कहकशान लतीफ़ के अलावा B कोटैया, सदर मानोटा, शेख नवीद प्रेसिडेंट मीवा और डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन के अलावा रिसर्च स्कॉलर्स भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद आसिफ अली और मेरा जो उन्वान है उर्दू ज़बान पर यूरोपी ज़बानों के असरात, मेरे निगरान मुशव्विर उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ज़ाकिर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तर्जुमा है। इस उन्वान के तहत सर मैंने जो ज़ेली उन्वानात लिए हैं, इनमें जो है लिसानी असरात, अदबी और सिनफ़ी असरात, उर्दू पर यूरोपी ज़बानों के इल्मी और तहज़ीबी असरात का जायज़ा है। अलावा उर्दू में दाखिल यूरोपी ज़बानों के अल्फाज, ज़बानों की तश्कील में अल्फाज का अहम रोल होता है। यही वजह है कि हमने इसमें जो है एक जो चैप्टर लिया है वो उर्दू में दाखिल यूरोपी ज़बानों के अल्फाज है, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के यूरोपी जो ज़बानें थी उन ज़बानों से आए अल्फाज को भी इस मक़ाले में शामिल किया गया है। इससे क़ब्ल कि मैं मेरे पहले चैप्टर या फिर पहले बात के बारे में कुछ तफसील शुरू करूँ, यहाँ पर ये बताना शुरू करूँगा कि यूरोप की जो ज़बानें हैं उनमें ज़्यादातर उर्दू पर जो असरात मुरतब हुए हैं उनमें हमने जिन ज़बानों का अहाता किया है उसमें पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, यूनानी का चूँकि असर रास्त तौर पर उर्दू पर नहीं पड़ा है, इसलिए हमने यूनानी को जो है ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी है, लेकिन उसके अल्फाज जो दूसरी ज़बानों से शामिल हुए हैं वो हमने ज़रूर लिए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के एक सूबे स्लोवानिया की जो क़दीम ज़बान है वो स्लावानी कहलाती है। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क की जो क़दीम ज़बानें हैं वो स्कैंडिनेवियाई कहलाती है। और बरतानिया की बाज़ जो ज़बानें हैं मसलन मैं कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरे तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ अली ने आज यूरोपी ज़बानों पर उर्दू पर यूरोपी ज़बानों के असरात के उन्वान से अपना मक़ाला पेश किया और आज उनका वायवा था। उन्होंने वायवे में बेहतरीन मुज़ाहरा किया और कामयाबी के साथ अपना डिफेंस किया। ये मौजू इतना वसी है कि इस पर उन्होंने जो तहक़ीक़ की है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है और उन्होंने इस वसी उन्वान को बेहतरीन अंदाज से पेश किया। और शोबे में इससे पहले भी उन्होंने जो MPhil का मक़ाला पेश किया था वो किताबी शक्ल में आ चुका है और उम्मीद है कि ये भी मक़ाला किताबी शक्ल में आएगा और इससे बहुत सारे तिश्नगाने इल्म को जो है इससे आसूदगी मिलेगी। और उम्मीद है कि हमारे शोबे के अंदर इस तरह के और भी तलबा है जो इस तरह के उन्वानात पर काम कर रहे हैं, वो भी अपने मक़ालात पेश करेंगे। और जो है शोबे के अंदर जो ख़ास बात ये है कि ये शोबा मल्टी डिसिप्लिनरी शोबा है। इसमें किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हमारे MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जो है दाखिला ले सकता है, जैसा कि अभी डॉक्टर खालिद साहब ने अभी तफसील पेश की डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से। और आज मैं दिल की गहराइयों से हमारे मोहम्मद आसिफ अली को मुबारकबाद देता हूँ उनकी PhD की तकमील पर। और ख़ास बात उनके मौजू की जो नुदरत और इनफरादियत है
वो यकीनन शोबे तर्जुमा के तलबा के लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी उनके मकाले से, और अहले इल्म हजरात के लिए भी जो है इससे जो है फ़ायदा हासिल होगा, और इल्मी हलक़ों में उम्मीद है कि इसकी पजीराई की जाएगी। हमारे शोबे के नहायत काबिल कदर और मेहनती रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब ने आज अपने PhD के वाइवा में अपने डिसर्टेशन का बहुत ही कामयाबी के साथ डिफेंड किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे नज़दीक आसिफ अली साहब और उनके गाइड डॉक्टर मोहम्मद जुनैद जाकिर साहब का एक ग्रां कदर काम है जो इंशाअल्लाह उर्दू और दीगर ज़बानों के हवाले से तारीख़ में एक अपना अनमिट मुकाम बनाएगा। शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से जितने भी रिसर्च के हमारे शाया हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना मुकाम इल्मी हलक़ों में बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे मौज़ूआत सेलेक्ट किए जा रहे हैं और अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, पर्शियन, फ़ारसी और दीगर ज़बानों के अलावा मुक़ामी ज़बान तेलुगु और कन्नड़, इन मौज़ूआत से रिलेटेड मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मौज़ूआत पर हमारे रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। इस शोबे में एक 2 साला कोर्स MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ भी चलाया जा रहा है, और इसमें दाखिले के लिए तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी के जितने मदारिस के साथ इक्वालेंस हैं उन सब के आलिम और आलिमात को जो है हमारे पास इक्वालेंस दिया गया है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हैदराबाद की आवाम से ख़ास तौर पर इस बात की अपील करता हूँ कि वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मजमूई तौर पर तमाम प्रोग्रामों में दिलचस्पी लें और ख़ास तौर पर शोबे तर्जुमा से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ में अपने ग्रेजुएट तलबा को भेजें, दाखिला करवाएं, और इंशाअल्लाह उससे उनकी न सिर्फ एक इल्मी सलाहियत में इजाफ़ा होगा बल्कि हमारे पास से जितने फारिग होने वाले तलबा और स्कॉलर्स हैं वो मीडिया में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और लैंग्वेज इंडस्ट्री के अंदर बड़े अच्छे पोजीशंस के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के अंदर अपना मुकाम बना रहे हैं। तो शोबे तर्जुमा के लिए आज एज़ाज़ है कि हमारे एक स्कॉलर आसिफ अली साहब ने बहुत कामयाबी के साथ अपने रिसर्च के मसाले का दिफा किया है, और हम उनके ज़िंदगी में आइंदा ज़िंदगी में उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। गढ़कसर पुलिस ने एक एक्सीडेंट केस में मुलजिम को फरारी में मदद देते हुए 20,000 रुपये की रकम रिश्वत के तौर पर मांगने वाले होमगार्ड और दीगर 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक NPC नगर ब्रिज के करीब मज़कूरा हादसा पेश आया था, जिसके बाद होमगार्ड और दीगर 2 अफराद ने 20,000 रुपये ड्राइवर को फरारी में मदद करने के लिए तलब किए थे। ड्राइवर ने 15,000 रुपये रकम देते हुए फरारी इख्तियार की थी। लालबाजार में वाक़ मुबारक कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मज़कूरा शॉप से मुत्तसिल शॉप्स को भी इस हादसे में नुकसान हुआ है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद मोलपुरा फायर फाइटर्स ने मुकामी हादसे पर पहुँचकर आग को काबू में किया। छतरीनागा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए खातून ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक जीजाबाई ने अपने शौहर अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उसने अपने बेटे को शदीद मारपीट की है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ है। मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मज़कूरा शख्स पर लानतें भेजी जा रही थी। इंस्पेक्टर छतरीनागा अब्दुल क़ादिर जिलानी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताएँ। ఈరోజు ఛత్రీనాకా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో లాల్ దర్వాజా దగ్గర ఉన్నటువంటి నాగం కాంప్లెక్స్లో అద్దెకు నివసిస్తున్న అశోక్ ఘంటే అతని కుటుంబం
అతని వైఫ్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తుంది. అతనికి 2 సంతానం. చిన్న అబ్బాయి అయినటువంటి 8 సంవత్సరాల అబ్బాయికి ఈరోజు బాగా అల్లరి చేస్తున్నారని చెప్పి వేరే వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయగా అతను కోపంతో వచ్చి అబ్బాయిని కట్టెతో కొట్టడం జరిగింది. దాని మీద సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవ్వడం, అదేవిధంగా అబ్బాయి వాళ్ళ మదర్ పోలీస్ స్టేషన్కు రావడం, కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సరే, ఎందుకో అంటే వీడియో ఎవరు తీసింది? ఈ వీడియో తీసింది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ చెల్లెలు. తండ్రి నేను కొడుతున్నా, నీ అబ్బాయిని కొడుతున్నా అని చెప్పి ఆ వీడియో వేరే వాళ్ళకు చూపించడం కోసం తీయించినాడు. అంటే కావాల్సిన వీడియో చూపించు, కావాలని వేరే వాళ్ళకు చూపించాలని చెప్పి వీడియో తీసాడు. MM हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की जानिब से 4 दिसंबर को एक रोज़ा मेगा शॉपिंग मेले का इनेकाद नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल पैलेस में किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत तैयारियां जारी हैं और शॉपिंग मेले में न सिर्फ लेडीज़ के लिए शॉपिंग का नज़म किया गया है बल्कि अशिया खुर्दनोश भी ताम की खातिर रखी गई हैं। नीज़ बच्चों की तफरीह का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। इस शॉपिंग मेले सीज़न 1 के ऑर्गेनाइज़र्स मिर्ज़ा इम्तियाज़ महमूद मिस्री के अलावा सिकंदर शाह ने ग्लोबल एक्सपो के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि तमाम उम्र की ख़वातीन व हज़रात के लिए इस एक्सपो में ख्याल रखा गया है और रात 12 बजे तक मज़कूरा शॉपिंग मेला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ग्लोबल एक्सपो मेगा शॉपिंग मेला 4 दिसंबर को ऑर्गेनाइज़ किया गया है हमारे जानिब से रेड रोज़ फंक्शन पैलेस में। यह हैदराबाद में काफ़ी एक्सपो हुए हैं, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये मेगा शॉपिंग मेला रखे हैं, जिसमें शॉपिंग है। शॉपिंग में फुटवेयर्स और क्लॉथिंग, ज्वेलरीज, इमिटेशन ज्वेलरीज, काफ़ी बच्चों के लिए खेलने के लिए जो है किड जोन है, फूड जोन है, और शाम में इवनिंग में जो है एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए। और ये एग्ज़िबिशन का जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम में 12 बजे तक है। और तमाम व्यूवर्स रूबी चैनल के थ्रू जो व्यूवर्स है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यानी 4 दिसंबर 2021 सैटरडे के रोज़ हम जो है हमारी जानिब से इंशाअल्लाह ताला ग्लोबल एक्सपो मेगा शॉपिंग मेला का अहतमाम किया गया है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कई एग्ज़िबिशन हो रहे हैं, मगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए भी जो है एक बिग मेगा शॉपिंग मेला जो है ये इसका जो है अहतमाम किया है, जो हैदराबाद के अवाम के लिए है। इंशाअल्लाह ताला ये जो है सीज़न 1 है। इंशाअल्लाह ताला इसका जो है दूसरे सीज़न जो है ना और मुख्तलिफ़ शहरों में वगैरह जो है हम इंशाअल्लाह आप लोग को बताएंगे। ये मेगा शॉपिंग मेले में जो है तकरीबन हम अच्छे कपड़ों से जो है टाई अप करे हुए हैं, ब्रांडेड कपड़ों से, और क्लॉथिंग है, फुटवेयर है, और कई सारे जो है अपने हैदराबादी अवाम के लिए एक शेल्टर के नीचे जो है ख़रीदने के लिए जो है हम फराहम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जब आप इससे थक जाते हैं, अगर 2-4 होते हैं, तो हम उनके लिए जो है कुछ बच्चों के लिए प्ले जोन का भी इंतज़ाम किया है और खाने पीने के लिए फूड जोन का भी इंतज़ाम है वहाँ पर। तो आप जो अपने पसंद के खाने खाना चाहते हैं, जिसमें कई कंग पाव चाइनीज़ रेस्टोरेंट का भी है, कोप सिजलर्स भी है, और डाइनर्स डिलाइट जो है बिरयानी वगैरह का भी है, और कई जो है चटपटे खाने पीने के चीज़ों का भी अहतमाम किया गया है। तो आप जो मर्ज़ी है वो खा सकते हैं। और बड़ों ये जो शॉपिंग मेला जो रखा गया है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 2 साल से सारे लोग वाकिफ़ है, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी मुतासिर है, और बड़े एग्ज़िबिशन मेला यहाँ पर लगे नहीं, और जो मेजर जो एग्ज़िबिशन लगती थी वो भी मुतासिर हुई है। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद की आवाम के लिए एक अच्छी ख़बर हम लेके आए हैं, एक अच्छा सा जो प्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं। हमारा तो मकसद था कि हम ये 4-5 दिन के लिए लगाते, लेकिन अभी ये जल्दबाजी में। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है।
दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में नए वोटर्स के वोटर ID कार्ड्स बनाने का काम जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली के अहमद नगर डिवीज़न के इलाके सैयद नगर में मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर की निगरानी में मज़कूरा काम जारी है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपने वोटर ID कार्ड्स को यकीनी तौर पर बनाएं। पूरे अहमद नगर डिवीज़न में सैयद नगर 2 में जितने भी वोटर लिस्ट का जो था, जो यंग जनरेशन है जिसकी उम्र 18 साल है, तो उनका इलेक्शन कार्ड का काम किया गया। हल्के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन साहब की हिदायत पर ज़ेर निगरानी में सरफराज सिद्दीकी साहब अहमद नगर कॉरपोरेटर, महमूद बेग ऑप्शन मेंबर और हमारे फिरदौस साहब तमाम अहमद नगर डिवीज़न के इफ्तिदार सदर पूरे मौजूद थे। हर पोलिंग बूथ पर नए वोटर ID का काम किया गया। अगर किसी का नाम में मिस्टेक है तो वो भी किया गया और इंशाअल्लाह ये काम महीना भर चलता रहेगा। हर एरिया में एरिया के इफ्तिदाई सदर से मिलिए आप, और BLOs भी मौजूद थे MCH के, मगर कुछ लोगों को मिस्टेक हो रहा तो पूरे हम लोग, मैं खुद यहाँ पर डेरा डाल के सैयद नगर 2 में, क्योंकि असउद्दीन अवैसी साहब की सख्त हिदायत है, जिस किसी का भी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है वो फौरी दर्ज कराए। तो हमारे साथ MCH के BLOs मौजूद थे पूरे पोलिंग बूथों पे। अल्लाह के करम से 1000 से 1500 तक हुआ अहमद नगर डिवीज़न में। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहते, आवाम की हर परेशानी को दूर करते। और इलेक्शन कार्ड बनाने का मकसद ये है, जहाँ पर भी जाएंगे आप तो ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है। पैन कार्ड के लिए भी इलेक्शन कार्ड का होना ज़रूरी है। गच्चीबौली में वाक़ एक अपार्टमेंट के सेफ्टी टैंक में साफ सफाई की गरज से उतरे 2 लेबर फौत हो गए, जबकि दीगर 2 लेबर्स को ज़ख्मी हालत में दवाखाना रुजू किया गया। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक 30 साला अंजी और 32 साला श्रीनू, जो डायलेस सेफ्टी टैंक नामी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो इस वाक़े में दम घुटने से फौत हुए हैं। माधवपुर फायर ब्रिगेड से वाबस्ता अमले ने नाशों को बाहर निकाला, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। SOT पुलिस ने कोकटपल्ली विवेकानंद नगर में वाक़ मकान पर धावा करते हुए एक रिव्यू पार्टी को बेनकाब किया और इस मकाम से 44 नौजवानों के अलावा 2 ज़नख़ों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलें और कॉन्डम्स के पैकेट भी बरामद किए गए। पुलिस को ये भी मालूम हुआ है कि हर हफ्ते इस तरह की पार्टी मुनक़िद की जा रही थी, जिसमें ज़नख़ों को लाया जा रहा था। కుకుట్పల్లి పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ వివేక్ నగర్ కుకుట్పల్లి కాలనీలో ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో రేవ్ పార్టీ లాంటిది జరుగుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే రేడ్ చేసిరు. అక్కడ దాదాపుగా ఒక 44 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంతా మేల్ యూత్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటంటే ఒక చిన్న మ్యూజిక్ లాంటిది పెట్టుకొని స్టార్టర్స్ తినుకుంటా, లిక్కర్ తీసుకొని ఉక్క తాగుకుంటా ఉన్నారు. దాన్ని మన వాళ్ళు రేడ్ చేసి మెయిన్ ఎవరైతే ఏదైతే అక్కడ పాల్గొన్న వాళ్ళ మీద మాత్రము ఎవరైతే న్యూసెన్స్ చేసిరో, సౌండ్ పొల్యూషన్ చేసిరో, దాని మీద వాళ్ళకు CP యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళ మీద కేసు చేయడం జరిగింది. మిగతా ఆర్గనైజర్స్ ఎవరైతే దయాల్, ఇమ్రాన్, ఇంకా అదర్ ఎవరైతే అబ్స్కాండింగ్ ఉన్న మెయిన్ ఆర్గనైజర్ రాకేష్ రెడ్డి, వాళ్ళ మీద మేము FIR కేసు బుక్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేస్తుంది. వాళ్ళు ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడము చట్టం కింద, ఇంకోటి లిక్కర్ సప్లై చేసిరు, ఇంకోటి ఉక్క అనేది వాడినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ సెక్షన్ల ప్రకారం వాళ్ళని మనము కేసు బుక్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. गैर सरकारी रज़ाकराना तंजीम एक्ट 9 की जानिब से शोबे तिब में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हेल्थ एंड मेडिकल साइंस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड पाने वालों में डॉक्टर शोभा देवी नकन्ना भी शामिल हैं, जो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर से वाबस्ता हैं। इस तकरीब की सदारत तंजीम के बानी और सदर KSN मूर्ति ने की, जबकि डॉक्टर पार्था सारथी, डॉक्टर स्रवती, डॉक्टर श्रवणी रेड्डी, डॉक्टर हरि कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल भिक्षापति ने मेहमानान की हैसियत से तकरीब में शिरकत की।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ना घबराएं, वैक्सीन की 2 खुराकों को यकीनी बनाएं, तेलंगाना हुकूमत रियासत की आवाम से की अपील। नौ ता 13 दिसंबर जंतर मंतर दिल्ली पर मुनज़्ज़म किया जाएगा धरना, कांग्रेस कायदीन का इंदिरा पार्क पर धरने का इख्तिताम, गवर्नर से नुमाइंदगी करने का किया गया फैसला। टीआरएस अरकान पार्लिमान का प्रगति भवन में इजलास, रियासत के किसानों से धान खरीदी के मसले को पेश करने केसीआर ने दी हिदायत। एक्सीडेंट केस में मुलजिम की फरारी में मदद करते हुए रिश्वत हासिल करने वाला होमगार्ड और दीगर 2 अफराद गिरफ्तार। एसओटी पुलिस ने कोकटपल्ली में रिव्यू पार्टी का पर्दा किया फाश, 2 ज़नखे और 44 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।